Hello students, this is Dheeraj Kumar, your English facilitator. Today in this video, we will read another chapter of your textbook First Flight. The name of the chapter is The Sermon at Banaras. The source of the chapter is Betty Renshaw. Let's talk about the author first. Betty Renshaw was born in the Renshaw family on September 3, 1927. She completed her graduation as valedictorian from Shannon High School and further secured the Bachelor of Arts degree from Mississippi College. In addition to this, she completed her Masters in Arts through one of the reputed universities. She started her career as a preschool teacher and in due course of time shared her experience by teaching other preschool teachers. On December 23, 1950, Betty married Joseph Barber. So her full name is Betty Renshaw Barber. So let's move on to the lesson. So before that, there is a small activity. As you can see, use a dictionary to ask for your teacher's help as you discuss the following questions in groups. 1. What is a sermon? Is it different from a lecture or a talk? Can this word also be used in a negative way or as a joke, as in my mother's sermon about getting my work done in time? So, first of all, what is sermon? Sermon is nothing but a talk, a religious talk by a hermit or a sage. Okay? It is different from a lecture or a talk. How is it different from a lecture? A lecture can be given on any topic. It is given in schools, it is given by politicians, it is given by people. Anybody can give a lecture. But sermon, what is a sermon? Sermon is usually given for religious purposes and they talk about morals and principles, etc. And next one is, can this word also be used in negative way or as a joke? So sometimes people use it as a joke or a preach, like preach by mother, my mother's sermon about getting my work done on time. So here is one more activity. Find out the meanings of the words and phrases given in the box. So you can see some words or phrases in the box. First is afflicted with. Afflicted with is to suffer from something. Afflicted with, to suffer from something. You can note down the meaning of these words or phrases. Afflicted with is to suffer from something. The next one is be composed. Be composed means to have your feelings under control. To have your feelings under control. The next one is desolation. Desolation means feeling very lonely and separate. Desolation means feeling very lonely and separate. Next one is lamentation. Lamentation is to cry or weep. Lamentation is to cry or weep. Next one, procure. Procure means to get. Procure means to get. And the last one, be subjected to. Be subjected to is to be affected by something. To be affected by something. Now, third activity. Have you heard of the Sermon on the Mount? So, Sermon on the Mount was delivered by Jesus Christ. Sermon on the Mount was delivered by Jesus Christ and he delivered it to whom? To his disciples. His disciples, its pronunciation is disciples, talking about
various morals. And who do you think delivered a sermon at Banaras? That is the title of the chapter. So Gautam Buddha, who was the founder of Buddhism, delivered a sermon at Banaras. So this is the title of the chapter, the sermon at Banaras. As you can see in the picture, this is Gautam Buddha and this is the sermon at Banaras. So where is Banaras? It is located in UP, Uttar Pradesh, and it is located at the bank of the river Ganga, where he preached his first sermon. Now let's move on to the chapter. Gautam Buddha 563 BC to 483 BC began life as a prince named Siddhartha Gautama in northern India. So गौतम बुद्धा जिनका टाइम पीरियड रहा बेटा 563 BC to 483 BC began life as a prince named Siddhartha Gautama in northern India. नॉर्दर्न इंडिया में जो सिद्धार्थ गौतम थे वो एक पहले राजकुमार हुआ करते थे, जो कि बाद में जिनका नाम गौतम बुद्धा के नाम से वो जाने लगे। अब आप सोचेंगे कि ये बीसी क्या है बेटा? बीसी मीन्स बिफोर क्राइस्ट, तो ये एक टाइम पीरियड था बिफोर क्राइस्ट, और इसी का अपोजिट होता था एडी। एडी मीन्स आफ्टर डेथ। अब आप सोचेंगे कि ये जो टाइम पीरियड है 563 BC टू 483 BC, कि 563 इज़ ग्रेटर देन 483। भी आदमी पैदा हुआ 563 में, मर गया 483 में, पहले कैसे मरा जन्म होने से? तो इसको आप एक मैथ के फॉर्मूला से समझ सकते हैं। जैसे ऊपर एक बनाया हुआ है, एक लाइन के ऊपर अगर हम 0 एक मान लेते हैं, 0 से पहले आपने देखा होगा नीचे -1 -2 -3, और ऊपर की बात करें तो आगे प्लस में, पॉजिटिव में हम 1 2 3 ले लेते हैं। तो अगर मैं बात करूं 0 की, तो 0 से पहले अगर मैं 1 की बात करूं, और वही उसी रो में अगर मैं -3 की बात करूं, तो जैसे -3 तक 0 तक आने के लिए जो चीज़ शो करते हैं, जैसे 563 को मानूं तो ये उल्टा चलता था भी, इसमें जो ग्रेटर दिखता है वो उससे कम है, मतलब 563 BC टू 483। नाउ तो गौतम बुद्धा बिगेन लाइफ एज अ प्रिंस नेम्ड सिद्धार्थ गौतमा इन नॉर्दर्न इंडिया। नॉर्दर्न इंडिया में सिद्धार्थ गौतमा जो कि एक प्रिंस हुआ करते थे, उनकी लाइफ शुरू हुई गौतम बुद्धा की, जो बाद में गौतम बुद्धा के नाम से जाने लगे। एट 12 ही वॉज सेंट अवे फॉर स्कूलिंग इन द हिंदू सेक्रेड स्क्रिप्चर्स एंड 4 years लेटर ही रिटर्न होम टू मैरी अ प्रिंसेस। 12 साल की एज में उनको स्कूलिंग के लिए भेजा गया, और क्या पढ़ने के लिए भेजा गया? हिंदू सेक्रेड स्क्रिप्चर्स। सेक्रेड मीन्स होली, स्क्रिप्चर्स रिलीजियस बुक्स। तो उनको हिंदू धर्म की जो रिलीजियस बुक्स थी, होली बुक्स थी, उनकी पढ़ाई करने के लिए 12 की एज में भेज दिया गया। एंड 4 years लेटर ही रिटर्न होम टू मैरी अ प्रिंसेस। और 4 साल के बाद जब वो आए तो उनकी मैरिज कर दी गई एक राजकुमारी के साथ, प्रिंसेस के साथ, क्योंकि वो खुद भी एक प्रिंस थे। दे हैड अ सन, उनका एक बेटा भी हुआ। एंड लिव्ड फॉर 10 years एज बिफिटेड रॉयल्टी। बिफिटेड मीन्स बी सुटेबल फॉर रॉयल फैमिलीज। भी एक रॉयल फैमिली का जो परिवार होता है
उनके जो मेंबर्स होते हैं जिस टाइप की लाइफ वो जीते हैं, तो उन्होंने 10 साल तक एक रॉयल फैमिली के मेंबर की तरह अपना जीवन यापन किया। एट अबाउट द एज ऑफ 25 द प्रिंस हेयर टू फोर शील्डेड फ्रॉम द सफरिंग्स ऑफ द वर्ल्ड। हेयर टू फोर मीन्स बिफोर नाउ। अब हुआ क्या कि उन्होंने 25 की एज तक एज अ प्रिंस, उनको उससे पहले कुछ पता ही नहीं था। शील्डेड मीन्स प्रोटेक्टेड। बी, वो वर्ल्ड के दुखों से बिल्कुल दूर थे, बिल्कुल परे थे, उनसे बचे हुए थे दुखों से, उनको दुखों का कुछ नहीं पता था। वाइल आउट हंटिंग चैंस्ड अपॉन अ सिक मैन, देन एन एज्ड मैन, देन अ फ्यूनरल प्रोसेशन, एंड फाइनली अ मॉन्क बेगिंग फॉर आर्म्स। चैंस्ड अपॉन मीन्स केम अक्रॉस बाय चांस, भी बाय चांस जो है सामने आ जाना। तो 25 साल तक की एज तक तो उनको दुखों का कोई पता नहीं था, लेकिन जब वो एक बार शिकार पर गए हुए थे वाइल आउट हंटिंग, तो बाय चांस उनको देखने का मौका मिला एक सिक मैन, एक एज्ड मैन, फिर एक फ्यूनरल प्रोसेशन, और फाइनली उन्होंने एक मॉन्क को भिक्षा मांगते हुए देखा। देखो मैं आपको इस पिक्चर में दिखाता हूँ। जैसे फर्स्ट पिक्चर में देखिए, यू कैन सी कि देयर इज़ एन ओल्ड मैन, तो उन्होंने एक एज्ड मैन देखा। देन उन्होंने नीचे देखिए पहले एक सिक मैन देखा जो फोल्डिंग पे पड़ा हुआ है, फिर उन्होंने एक एज्ड मैन देखा सेकंड पिक्चर में। थर्ड जो है ऊपर में देखें तो हम उन्होंने फिर एक फ्यूनरल प्रोसेशन देखा। फ्यूनरल प्रोसेशन क्या होता है बेटा? जब किसी डेड बॉडी को बरिंग के लिए यानी दफनाने के लिए या फिर उसको जलाने के लिए, क्रीमेशन के लिए लेकर जाते हैं, तो उन्होंने एक ऐसा फ्यूनरल प्रोसेशन, वो कोई लेके जा रहे थे डेड बॉडी को, वो देखा। और फिर लास्ट में एक उन्होंने क्या देखा? उन्होंने फाइनली एक मॉन्क को देखा। मॉन्क एक भिक्षु होता है जो भीख मांगते हैं, बैगिंग फॉर आर्म्स, आर्म्स मतलब भीख। तो उन्होंने फिर ये जब सारे दृश्य देखे, तो इन दृश्यों का उनको, इन दुखों का तो कभी पता ही नहीं था क्योंकि उन्होंने एक प्रिंस की लाइफ जी हुई थी। तो जब इनका वास्ता या बाय चांस इन्होंने ये सारे दृश्य देखे, तो क्या हुआ? दीज साइट्स सो मूव्ड हिम दैट ही एट वंस वेंट आउट इनटू द वर्ल्ड टू सीक एनलाइटमेंट कंसर्निंग द सोरोज ही हैड विटनेस्ड। वो इन दृश्यों से, साइट्स, इन व्यू से इतने प्रभावित हुए कि ही एट वंस वेंट आउट। वेंट आउट मीन्स लेफ्ट होम, अपना घर ही त्याग दिया, एकदम से घर त्याग दिया। इनटू द वर्ल्ड, और उस दुनिया में, टू सीक एनलाइटमेंट, सीक मीन्स गेन, एनलाइटमेंट मीन्स अ स्टेट ऑफ हाई स्पिरिचुअल नॉलेज, एक नॉलेज लेने के लिए, दुनिया की वास्तविकता जानने के लिए। कंसर्निंग द सोरोज, कंसर्निंग मीन्स टेकिंग इंटरेस्ट इन द सोरोज ही हैड विटनेस्ड, विटनेस्ड मीन्स सीन। जो उन्होंने ये दृश्य देखे, ये जो दुख देखे ना उन्होंने अपने सामने, जैसे कोई सिक मैन, ओल्ड मैन, फ्यूनरल प्रोसेशन, या कोई भिक्षु भीख मांगने वाला, ये दुखों को जैसे ही उन्होंने देखा, तो इनको एक जीने के लिए, इनकी स्पिरिचुअल नॉलेज लेने के लिए भी, ट्रुथ क्या है वास्तव में, ट्रुथ से तो वो बहुत दूर थे, तो उनकी नॉलेज लेने के लिए उन्होंने अपना घर तुरंत त्याग दिया। ही वॉन्डर्ड फॉर 7 years। वॉन्डर्ड मीन्स वॉकड अराउंड, वो 7 साल तक भटकते रहे उस एनलाइटमेंट के चक्कर में। एंड फाइनली सैट डाउन अंडर अ पीपल ट्री, और फाइनली फिर एक लास्ट में थक हार कर भी जब उनको वो एनलाइटमेंट नहीं मिला, तो एक पीपल ट्री के नीचे बैठ गए। वेयर ही वाउड टू स्टे, वाउड मीन्स मेड प्रॉमिस, जहाँ उन्होंने कसम खा ली। क्या कसम खा ली? कि मैं यहीं पर बैठा रहूँगा अनटिल एनलाइटमेंट केम, भी जब तक मेरे को ये सारा ज्ञान जो नॉलेज है नहीं मिल जाती, मैं इससे उठ के नहीं जाऊंगा, मैं तब तक इसी पेड़ के नीचे बैठा रहूँगा।
तो उन्होंने ये कसम खा ली। अनटिल एनलाइटमेंट केम, तो एनलाइटमेंट हो गया नॉलेज, और रियलाइजेशन ऑफ ट्रूथ भी कह सकते हैं आप भी, जब तक उनको सच का पता नहीं चल जाता। एनलाइटनड आफ्टर 7 days ही रीनेम्ड द ट्री द बोधि ट्री, ट्री ऑफ विजडम, एंड बिगेन टू टीच एंड टू शेयर हिज न्यू अंडरस्टैंडिंग्स। अब 7 दिन के बाद एनलाइटनड मीन्स उनको ज्ञान मिल गया, जो पर्सन को ज्ञान मिल गया उनको बोल दिया एनलाइटनड आफ्टर 7 days। उस ज्ञान के मिलने के बाद उस पीपल ट्री का नाम क्या रख दिया गया? बोधि ट्री। बोधि ट्री मीन्स ट्री ऑफ विजडम, बुद्धिमता का ज्ञान देने वाला ट्री। एंड बिगेन टू टीच, और उन्होंने फिर वहाँ से अपना टीच करना भी शुरू कर दिया। मान लो मेरे को किसी चीज़ की नॉलेज हो गई तो मैं अपनी नॉलेज शेयर करना चाहूँगा कि मेरे को दुनिया की वास्तविकता, दुनिया का जो मेन ट्रूथ, जो मेरे को रियलाइजेशन हो गई है उस ज्ञान की, तो मैं उसको बांटना भी चाहता था। तो उनको देखो 7 साल भटकते रहे, नहीं मिला। 7 दिन वहाँ उस पेड़ के नीचे बैठे, उनको वो ज्ञान मिल गया, उन्होंने मेडिटेशन किया होगा। तो फिर उस ज्ञान को बांटने के लिए टू शेयर हिज न्यू अंडरस्टैंडिंग्स, उस पेड़ का नाम वहाँ पर बोधि ट्री रख दिया गया। एट दैट पॉइंट ही बिकेम नोन एज द बुद्धा, और वहीं से उनका नाम भी वो क्या जाने जाने लगे? बुद्धा। बुद्धा मीन्स द अवेकन्ड और द एनलाइटन्ड, जिसको जो मतलब ज्ञान हो गया हो, जिसको सारी चीज़ों का ज्ञान हो गया हो, दुनिया की वास्तविकता का जिनको रियलाइजेशन हो गई ऑफ ट्रूथ या नॉलेज आ गई इतनी, तो उनका नाम बुद्धा पड़ गया और उस पेड़ का नाम बोधि ट्री। द बुद्धा प्रीच्ड हिज फर्स्ट sermon एट द सिटी ऑफ बनारस, मोस्ट होली of the dipping places on the river Ganga. That sermon has been preserved and is given here. अब बुद्धा ने ये जो सरमन दिया था ना बेटा, ये बनारस की सिटी में दिया था। बनारस एक फेमस सिटी है इन यूपी, और वहाँ पर भी वो पेड़ कहाँ पे था? मोस्ट। अब ये जो बनारस सिटी है वैसे भी किस चीज़ के लिए फेमस है बेटा? मोस्ट होली ऑफ द डिपिंग प्लेसेस ऑन द रिवर गंगा। वहाँ पर रिवर गंगा बहती है वहाँ पर, तो वहाँ पर लोग जो है पवित्र होने के लिए या डुबकियाँ लगाने के लिए वहाँ पर अक्सर जाते हैं, तो बड़ा फेमस है वो प्लेस। और वहाँ पर जहाँ पर इन्होंने वो सरमन दिया था, अपना रिलीजियस टॉक या अपना जो एक उपदेश कह सकते हैं दिया था, वो सरमन आज तक वहाँ पर संभाल कर रखा गया है। हैज़ बीन प्रिजर्व्ड, प्रिजर्व्ड मीन्स केप्ट, एंड इज़ गिवन हेयर, और यहाँ पर दिया जाता है वो उपदेश। इट रिफ्लेक्ट्स द बुद्धाज विजडम अबाउट वन इनस्क्रूटेबल काइंड ऑफ सफरिंग, और इट रिफ्लेक्ट्स का मतलब शो, और वो ये चीज़ क्या दर्शाती है? बुद्धाज विजडम, बुद्धा की जो बुद्धिमता थी, यानी कि उनका जो ज्ञान था, जो उनकी नॉलेज थी, अबाउट वन इनस्क्रूटेबल। इनस्क्रूटेबल मीन्स ये ग्लोसरी में मीनिंग दिया हुआ है, समथिंग विच कैन नॉट बी अंडरस्टूड। भी ऐसा ज्ञान, बुद्धा का ज्ञान, इनस्क्रूटेबल काइंड ऑफ सफरिंग, ऐसे दुखों के बारे में जिसको कोई नहीं जान सकता, उन दुखों के बारे में जो बुद्धा का ज्ञान है, बुद्धा को जो नॉलेज आ गई थी, बुद्धि आ गई थी, उस चीज़ को वो शो करता है। और वो सरमन जो है वो अभी तक वहाँ पर अगर जाएं तो वहाँ पर जैसे ऊपर गाड़ दिया जाता है ना, मतलब जैसे अक्षरों को, तो वो उपदेश वहाँ पर अभी तक भी प्रिजर्व रखा हुआ है, जो सरमन बनारस में किसने दिया था? गौतम बुद्धा ने, जो कि शुरू में क्या हुए थे, एक सबसे पहले क्या थे? वो एक सिद्धार्थ गौतम के नाम से एक प्रिंस हुआ करते थे, जिन्होंने अपनी लाइफ एकदम से, जब दुखों के बाई चांस उनके सामने दुख देखे उन्होंने लोगों के, तो उन दुखों को जीने के लिए, उन दुखों को और जानने के लिए उन्होंने अपना घर त्याग दिया था। तो दैट्स ऑल फॉर द डे बेटा। ओके बेटा, गुड बाय।